ऑलराइट, सो कल हमने रेफ्रिजरेटर्स का एक जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था। आपको याद होगा, वी स्टार्टेड विथ हीट इंजन्स। हीट इंजन का काम क्या है आपको सबको पता है। हीट इंजन क्या करता है? हीट इंजन हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। ओके, सो हीट इंजन इज अ डिवाइस which transforms heat into mechanical work, useful work, of course. And if you remember steps, if you remember, क्या होता है? working substance in the form of gas or in the form of fluid vapor plus air, अगर आप पेट्रोल या डीजल इंजन की बात कर रहे हो, so working substance absorbs heat कहां से? from hot reservoir which is source. Okay, and does what? And after absorption of heat from the source, it converts a part of heat into work and rejects remaining heat to the sink. Okay, this is what a heat engine does. So refrigerator, air conditioners and heat pumps, they are nothing but heat engines which work in backward direction. Okay, so one by one you have refrigerator, you have air conditioners and heat pumps. ये क्या करते हैं? They work in backward direction. So they work in backward direction. They are also heat engines, but these are heat engines working in backward direction, reverse direction. Right? Every single step is important. So what is the role of refrigerator or air conditioner or heat pump? क्या करना है? You have to make a chamber, जैसे रेफ्रिजरेटर का अंदर का बॉक्स या फिर एयर कंडीशन यूज करोगे तो रूम, उसको आपको चिल करना है, कोल्ड करना है, टेम्परेचर उसका रिड्यूस करना है, राइट? करेक्ट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, यहाँ पे उल्टा करना है। तो सबसे पहले यू विल हैव टू लर्न मैकेनिज्म ऑफ हाउ डज हीट फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर रीजन टू अ हॉटर रीजन, बिकॉज दिस is violation of law of physics. Physics, according to thermodynamics, you know, heat always flows from higher temperature region to lower temperature region. So we know that heat flows from higher temperature region to lower temperature region. So we know that heat flows from hotter to colder region. हमें एग्जैक्टली इसका उल्टा करना है। क्या करना है? वी वांट टू मेक हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर रीजन. वी वांट द हीट टू फ्लो फ्रॉम colder to hotter region. Okay, and as I told you in the last session, अपने आप तो नहीं होगा. This cannot happen on its own, so we will have to force it. So this cannot happen on its own. Right? इसलिए तो फिर रेफ्रिजरेटर या फिर ऐसे सब मशीन हमको लाने पड़ते हैं. So you spend a lot of money in buying this kind of machines, engines basically. Are we good until this point? Right?
तो अब ये कैसे करेंगे, हाउ टू डू दिस? तो इन दिस केस it means that you have to take out heat from a chamber, from a room which is already at less temperature compared to ambient temperature. What is ambient temperature? Surrounding temperature. Okay, so how do you do this? मैंने कल बताया था, मैं वापस अभी बता देता हूँ. So what you do is, in order to absorb heat from colder region and reject it a hotter region, work has to be done. You have to do work. और इसीलिए फिर घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है. इफ यू यूज एयर कंडीशंस, इफ यू यूज रेफ्रिजरेटर, क्योंकि ये एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस है. किसी को अपना घर गर्म करना होगा तो नो प्रॉब्लम, you just open doors, don't make it isolated. I mean, heat will automatically come from higher temperature region. गर्मियों में बाहर 45 होता है, and then you can just enjoy hotness, right? But यहाँ पे थोड़ा difficult है. This is something that you need to take care of, right? तो अब ये करेंगे कैसे? तो अगर आपको हीट इंजन याद है, तो हीट इंजन में चाहे वो कार्नोट इंजन हो, चाहे वो हीट इंजन हो, तो बाय द वे कार्नोट इंजन इज एन आइडियल हीट इंजन. तो यू यूज वर्किंग सब्सटेंस विच वाज गैस, राइट? तो यहाँ पे भी हमें एक वर्किंग सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी, बट इन दिस केस वर्किंग सब्सटेंस इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग फ्रॉम गैस टू लिक्विड. ओके, मैं पहले आपको एक सिंपल से डायग्राम से बता देता हूं कि एग्जैक्टली होगा क्या, एंड देन वी कैन नोट इट डाउन, and then I'll explain you what is this diagram here. So first of all, let us say we have two rooms. अभी दो नहीं है तो एक सराउंडिंग मान लेना और एक रूम मान लेना. ओके, समथिंग लाइक दिस. हमें इस रूम को, लेट अस से रूम नंबर 1, इसको कोल्ड करना है और यहाँ का हीट हमको एब्जॉर्ब करके रूम नंबर 2 में रिजेक्ट करना है, राइट? तो व्हाट वी डू इज, मैं एकदम सिंपल मैकेनिज्म बता रहा हूं, देन वी विल कॉम्प्लिकेट इट. लेट अस टेक अ सिलेंडर फिटेड विथ अ पिस्टन, और इसके अंदर आपके पास वर्किंग सब्सटेंस है. वर्किंग सब्सटेंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड or whatever it is. We'll see what happens. And pardon me for my drawing here. I know it is not straight. So anyways, doesn't matter. ये ऐसा है. Okay, good. तो in such cases, मतलब रेफ्रिजरेशन का केस, जब आपको एक चेंबर को एम्बिएंट टेम्परेचर के कंपैरिजन में, एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में कोल्ड करना होता है, वहां का टेम्परेचर रिड्यूस करना होता है, तो यू यूज सम मटेरियल, वर्किंग सब्सटेंस, उसको यहाँ पे बोलते हैं रेफ्रिजरेंट. सो यू कैन सी हियर दे आर शोइंग सम रेफ्रिजरेंट. रेफ्रिजरेंट हियर इज एक्चुअली, एज आई टोल्ड यू, फ्लूइड. फ्लूइड मतलब विच कैन फ्लो. फ्लूइड मतलब गैसेस एंड लिक्विड बोथ आर फ्लूइड्स. तो यहाँ पे फ्लूइड है जो कंटिन्यूअसली फेज चेंज करेगा फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड देन बैक टू लिक्विड अगेन. ओके, तो व्हाट हैपेंस इज, थिंक, हम ऐसा करते हैं, हमको क्या कोल्ड करना है पहले वो याद रखना. क्या कोल्ड करना है? ये रूम नंबर 1. ओके, यहां जो वर्किंग सब्सटेंस होगा, मान लो यहां पे वर्किंग सब्सटेंस है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. ओके, तो वो लिक्विड क्या करेगा? वो लिक्विड इस रूम से हीट को एब्जॉर्ब करेगा. अगर रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर में जो जो भी रखा है आपने, सब्जी, ड्रिंक, व्हाटएवर इट इज, उसका वो हीट एब्जॉर्ब करेगा. वो कैसे करेगा? दैट इज लेटर पार्ट. पर समझ लो हीट एब्जॉर्ब करेगा. हीट एब्जॉर्ब करके व्हाट विल हैपन? दिस लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर, मतलब इनटू गैस. तो द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय दिस वर्किंग सब्सटेंस व्हिच इज रेफ्रिजरेंट
is nothing but latent heat of vaporization. करेक्ट. यहाँ पे जो लिक्विड था उसने हीट एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने की वजह से देयर इज फेज चेंज, लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू गैस. अब इसको सिलेंडर और पिस्टन को नहीं, इस गैस को कहां लाए? सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में, जहां पे हीट आपको रिजेक्ट करना है. तो व्हाट यू विल डू इज compression comes with rejection of heat, right? compress हुआ, heat reject हुआ और प्रेशर बढ़ा, right? तो प्रेशर बढ़ता है तो कल मैंने बताया था कंडेंसेशन होता है. कंडेंसेशन मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर गैस आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर गेटिंग कन्वर्टेड टू लिक्विड. करेक्ट. तो यहां पे आने के बाद here because of the compression there is condensation and there is rejection of heat. कौन सा हीट रिजेक्ट हुआ? जो यहां से एब्जॉर्ब किया था रूम नंबर 1 से. अब जब तक ये वापस रूम नंबर 1 में नहीं जाता तब तक इसको एक्सपांड होने देना नहीं है. मतलब इट शुड रिमेन इन लिक्विड फॉर्म. वापस से नाउ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, यहां पे हमने कंप्रेस किया था, हीट वाज रिजेक्टेड मतलब द गैस was cooling down. forced cooling बोलते हैं उसको हम लोग, forced compression. करेक्ट. इसका मतलब अब जो वर्किंग सब्सटेंस है, रेफ्रिजरेंट है, इट इज एट लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू द चेंबर 1. हीट विल फ्लो फ्रॉम चेंबर 1 इनटू फ्लूइड अगेन. ओके, क्योंकि वो फ्लूइड में कन्वर्ट हो चुका है, दिस इज लिक्विड अगेन. फिर लिक्विड वापस से हीट एब्जॉर्ब करके वापस इसका कन्वर्जन होगा गैस में, वापस फेज चेंज. फिर ये जो हीट एब्जॉर्ब की उसको लेके यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे फोर्स कंप्रेशन एंड रिजेक्शन ऑफ हीट एंड अगेन फेज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस. करेक्ट, राइट. तो दिस इज व्हाट इज शोन इन दिस डायग्राम. ये जो आप डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे, ओके, यू सी यू हैव अ कोल्ड रीजन, देयर इज पाइपलाइन. इस पाइप में कंटिन्यूअसली जो रेफ्रिजरेंट है, जो वर्किंग सब्सटेंस है, वो सर्कुलेट होता रहता है. व्हाट विल हैपन हियर इज एक्सपांशन. मैंने अभी बताया था आपको, इफ यू रिमेंबर, जिस चेंबर को कोल्ड करना है वहां पे क्या हो रहा है? एक्सपांशन. एक्सपांशन इज accompanied by forced evaporation, expansion and forced vaporization. करेक्ट. हीट एब्जॉर्प्शन. तो वही रेफ्रिजरेंट मैंने सिर्फ बताया था, वो ब्लॉक पिस्टन इज मूविंग, मतलब वो पूरा का पूरा सिलेंडर हम लोग दूसरे रीजन में आए. वैसे वी डू नॉट डू दिस. कभी देखा है किसी को ऐसा करते हुए? मैन्युअली यू पुट अ सिलेंडर इनसाइड, देन लेट दैट सिलेंडर वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब इट, फिर उसको निकाल के बाहर रखा, फिर कंप्रेस किया. नहीं, वो सिर्फ एक समझने के लिए था. इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ विजुअलाइजेशन. ये होता है ऑटोमेटिकली, और वी विल सी different components. So anyways, then this refrigerant which has absorbed heat and is converted into gas will come out to the hotter region, जो आपके रेफ्रिजरेटर का बैक साइड होता है वहां पे, राइट. देन देयर इज अ कंप्रेसर. कंप्रेसर का काम क्या होगा? टू कंप्रेस. सो हीट रिजेक्शन. So compressor will basically compress the working substance. मतलब compression is accompanied by forced condensation. मतलब वापस से लिक्विड का कन्वर्जन हो गया, लिक्विड का गैस का. तो you always need to remember what is happening. मैं लिख देता हूं. What is happening here? It was liquid to gas conversion. Gas will come out. It will be compressed and it will be forced to condensate. So here will be conversion of gas to liquid again, right? फिर वापस से that liquid goes into the chamber, मतलब chamber और room जिसको आपको cold करना है. It enters again and this cycle continues. Is it clear? Right? तो रेफ्रिजरेटर के अंदर, मतलब उस चेंबर में क्या करना है हमको?
कोल्ड करना है। कोल्ड करना है मतलब वहां का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम करना है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो रेफ्रिजरेंट है, इट इज ओरिजिनली इन विच फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, हुज टेम्परेचर इज less compared to the temperature of the substances kept inside the chamber of refrigerator, right? So heat will flow from those vegetables, fruits, whatever it is, to the liquid. That liquid will absorb the heat and it will get converted into vapors. So liquid to gas absorption and forced vaporization. This converted gas will now go outside. कैसे जाएगा, अपने आप तो नहीं जाएगा, देयर आर पाइपलाइंस, ओके, इट विल गो आउटसाइड। आउटसाइड कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर का काम क्या है, उस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना। व्हेन इट इज कंप्रेस्ड इट इज एक्चुअली मेड टू रिजेक्ट हीट टू द सराउंडिंग। इसका मतलब बेसिकली यू नो द चेम्बर और वट एवर यू से द सिलेंडर के जो वॉल्स होंगे दे शुड बी कंडक्टिंग वॉल्स, ओके। सो व्हेन the heat is being rejected and it is compressed, so molecules of the gas are coming closer and they will again condensate to form a liquid. yahan tak clear? So ye this is how in short a refrigerator or air condition or heat pump works. Good. So step by step what happens is हमें क्या करना था मैंने लिख दिया. So this is achieved by phase change. किसका phase change? Phase change of इसका working substance which is known as refrigerant. So this is achieved by phase change of a fluid, that is working substance, called as रेफ्रिजरेंट. इसको आप रेफ्रिजरेंट बोलते हो, वहां पे लिखा है, करेक्ट. एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस साइकिल. हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस साइकिल? जैसे मैंने अभी बताया वैसे एक पॉइंट बाय पॉइंट करते जाना है. सो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दिस. ओके, तो व्हाट हैपेंस इज, क्या होगा, रेफ्रिजरेंट, what happens inside the cold region? Refrigerant absorbs heat and it expands. While expanding, it undergoes what? Phase change, मतलब forced vaporization. So while expanding it undergoes forced vaporization. This is what you need to know, correct? Then what happens? इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद ये गैस के फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट है, इट इज टेकन टू द सराउंडिंग वाया सम पाइपलाइंस. ओके, देयर इज सम ट्यूब. सो दिस रेफ्रिजरेंट in the form of gas is brought in contact with the surrounding, with the environment, correct? And of course you need to mention in the form of gas. Here this gas is compressed and heat is rejected. कहाँ रिजेक्ट किया हीट को? Rejected to the surrounding. And that is why आप रेफ्रिजरेटर के पीछे खड़े हो गए तो you feel warm, right? It is because of this process going on. Okay, then क्या होगा? While
compression or while being compressed. While being compressed, क्या हुआ रेफ्रिजरेंट का? रेफ्रिजरेंट was forced to undergo condensation. Okay, refrigerant is forced to undergo condensation and it is back to the liquid form. Correct? Right? अभी ये जो पंपिंग है, क्या पंप हुआ? एनर्जी पंप हुआ. कहां से पंप हुआ? कोल्ड रीजन से कहां पे गया? एनवायरमेंट में. This is called as, that is why they are called as heat pump. So you are pumping heat from colder region to hotter region. So this mechanism is pumping of heat from lower to higher temperature region. To higher temperature region. समझ लेना अब. I'm not going to write everything. It is just for the sake of your understanding. Okay? यहाँ लिखना सिर्फ इसके लिए होता है so that you follow steps. Good? Now, अपने आप होगा? अपने आप होगा? नहीं. Second law of thermodynamics. It tells you heat cannot flow from colder to hotter region on its own. So work has to be done. So it should be accompanied by work, right? So all this process is done with the help of work, mechanical work. So this is done by doing mechanical work, and hence you can say heat engine में क्या होता था? What was converted to what? Heat was converted to work, and यहाँ पे hence refrigerator converts. मैंने क्या बताया आपको? क्या बताया था मैंने आपको यहाँ पे? बैकवर्ड डायरेक्शन. हीट इंजन क्या कर रहा था? हीट का कन्वर्जन वर्क में. तो रेफ्रिजरेटर क्या करेगा? यस. हेंस रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स बेसिकली, ओके, एंड हीट पंप्स कन्वर्ट्स mechanical work into heat. Mechanical work into heat. Good. Right? Then मैंने कल आपको ये एनर्जी फ्लो डायग्राम बताया था and you need to know this. Okay? तो हम बाद में डिस्कस करेंगे. But by the way, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ. You still have to say a lot. तो here this diagram over here shows तो यहाँ पे जो हमारे पास डायग्राम है, दिस शोज बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ रेफ्रिजरेटर. ओके, तो विल गो इनटू माइन्यूट डिटेल्स ऑफ इट वन बाय वन. हमको ज्यादा डिटेल्स देखने नहीं है. सो व्हाट हैपेंस इज, दिस इज हॉट रीजन, मतलब ये रेफ्रिजरेटर के बाहर का पार्ट. ये एयर कंडीशन के बाहर जो आप वो कंप्रेसर लगाते हो, दैट इज दिस. ओके, कभी खोल के देखोगे तो यू विल सी सच ट्यूब्स. और अगर वो एयर कंडीशन ठंडा करना बंद हो गया तो आप बोलते हो उसका गैस गया, बोलते ना गैस गया. इफ यू कीप एयर कंडीशन ऑन फॉर 10 hours बट इट इज नॉट कूलिंग, तो व्हाट डू यू से? उसमें गैस गया, गैस खत्म हो गया, मतलब देयर वाज सम लीकेज बिकॉज ऑफ व्हिच रेफ्रिजरेंट लीक्ड आउट. ओके, तो by the way, you have a compressor, you have expansion valve. मैंने बताया क्या होगा, एक तो एक्सपांशन होगा, एक कंप्रेशन होगा. तो कंप्रेशन करने के लिए कंप्रेसर चाहिए, एक्सपांशन अलाउ करने के लिए एक्सपांशन वाल्व चाहिए. ओके, देन यू हैव
अ चेम्बर विच यू वांट टू कूल डाउन, जैसे ये इनसाइड रेफ्रिजरेटर है, जैसे ये आपका रूम है। देन एक हॉट रीजन होगा, जैसे रेफ्रिजरेटर के पीछे का पार्ट, या फिर इन केस ऑफ एयर कंडीशन घर के बाहर का वो जो कंप्रेसर बोलते हो, वो पूरा स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज नॉट कंप्रेसर, दैट इज कंप्रेसर ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ इट। ओके, तो ये बाहर जो आप लगाते हो विच आल्सो हैज अ फैन, दिस इज दैट पार्ट विच गोज इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। क्लियर यहां तक? अब होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो inside refrigerator is low pressure low temperature region. Yes, pressure inside is less compared to pressure outside. So inside refrigerator is a low pressure low temperature region and surrounding is high temperature high pressure region. तो जो मैंने आपको यहाँ पे वर्किंग बताया है विद द हेल्प ऑफ दिस वन, यही डायग्राम है, इट इज द सेम डायग्राम विथ लिटिल मोर डिटेल्स। क्या होगा अब, कंप्रेसर का काम क्या था, टू कंप्रेस द गैस एंड कंप्रेशन के साथ हीट रिजेक्शन, इसलिए इसको घर के बाहर लगाते हैं। हीट रिजेक्ट होना चाहिए, कहां पे रिजेक्ट होना चाहिए, इन द सराउंडिंग, दैट इज व्हाई इट इज केप्ट आउटसाइड। ओके, साथ में और क्या काम था इसका कंप्रेसर का, फोर्स कंडेंसेशन। फोर्स कंडेंसेशन मतलब टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। उसके बाद क्या होना चाहिए, लिक्विड कहां जाना चाहिए, रेफ्रिजरेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड शुड गो वेयर, इनसाइड, राइट। तो कंप्रेशन होने के बाद द लिक्विड विल एंटर। ओके, राइट, फॉरगेट अबाउट दिस arrowheads for time being, right? Then this refrigerant in the form of liquid, it goes into the chamber. यहां पे बोला है evaporator coil। तो क्या होगा बेसिकली, अब हम डिटेल में जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो भी आपने सब्सटेंसेस रखे हुए हैं उसका हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, रेफ्रिजरेंट। वो कौन से फॉर्म में था, लिक्विड, उसका क्या होगा, वेपराइजेशन, मतलब क्या होगा, गैस। फिर वो गैस कहाँ जाएगा, यहाँ पे, राइट। बट व्हेन इट वाज एब्जॉर्बिंग हीट इट वाज एक्सपांडिंग आल्सो, बताया था ना मैंने, इट विल एक्सपांड, राइट। तो वो बहुत सिंपल फॉर्म में हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, बट इट इज नॉट दैट सिंपल, इट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो अब डिटेल देखेंगे हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेफ्रिजरेटर has all these components. Second, refrigeration मतलब cooling, इसको बोलते हैं artificial cooling. Artificial cooling involves 4 steps. 1, 2, 3 and 4. सबसे पहले होता है adiabatic expansion. फिर होता है आइसोबारिक एक्सपांशन, फिर होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन, एंड एट द लास्ट स्टेज इट इज आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे कंप्रेशन, राइट। Yes, compression at constant pressure, right? So go back to this again and try to link. मैंने क्या बताया था आपको, cold region में heat will be absorbed, refrigerant will absorb heat and goes into gaseous state, phase change, right? But in reality ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होती है। पहले स्टेप में होता क्या है, एडियाबैटिक एक्सपांशन, मतलब ये वो जो आपके पास लिक्विड है इट इज अलाउड टू एक्सपांड विदाउट एक्सचेंज ऑफ एनी हीट। मतलब वो रेफ्रिजरेटर के चेंबर में वेजिटेबल फ्रूट XYZ चीजों से हीट ले ही नहीं रहा है, इट इज जस्ट एक्सपैंडिंग। व्हाई, इंटरनल एनर्जी will decrease. Very good, excellent. Internal energy will decrease. If internal energy decreases, temperature also decreases.
मैंने बताया था आपको कि रेफ्रिजरेंट को अगर हीट एब्जॉर्ब करना है तो चेंबर के कंपैरिजन में उसको लोअर टेम्परेचर पे रहना पड़ेगा, राइट? तो सबसे पहले जब आप एडियाबैटिक एक्सपांशन को अलाउ कर रहे हो, गैस इज यूजिंग इट्स ओन एनर्जी टू एक्सपैंड, मतलब इट विल कूल डाउन. सो दिस इज कूलिंग स्टेज ऑफ रेफ्रिजरेंट, राइट? करेक्ट. अब isobaric expansion. Now that refrigerant is allowed to take heat from all the substances which are kept inside refrigerator. Now because क्यों ऐसा? क्योंकि now that refrigerant is at lower temperature compared to the, मतलब आपके रेफ्रिजरेटर का अगर 5 डिग्री होगा तो 5 से भी कम पे हो. This is what I am saying. So then heat will flow from substances inside that chamber to this refrigerant, right? And it still expands, but without change in pressure, isobaric. Okay, right? Good. उसके बाद I told you it goes, and by the way, without change in pressure है, ये याद रखना. Okay, so उसके बाद क्या होगा? उसके बाद this refrigerant goes out, and then I told you it is compression accompanied by forced condensation. Look at this. Third step, adiabatic compression. So you are compressing the gas adiabatically and not allowing heat to leave. यहाँ पे रिजेक्ट करना है तो leave. तो गैस का कन्वर्जन आप लिक्विड में कर रहे हो, without allowing exchange of heat. And once it is in liquid form, then you allow isobaric compression. अब आप अलाउ कर रहे हो जो भी रेफ्रिजरेंट था, कंप्रेशन होने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में तो आ गया, बट हीट तो है, उसको रिजेक्ट करना है. तो अब आप इसको आइसोबारिक प्रोसेस में लेके जाओगे एंड यू आर स्टिल कंप्रेसिंग. मतलब कंप्रेशन मतलब नाउ यू आर अलाउइंग दैट refrigerant here to give out heat. So now you are allowing this to throw out heat, right? So this is also 4 strokes, just like heat engine. Is it clear? Right? तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो थोड़ा समझेगा. Now let us talk about energy flow diagram. So this is all about इंट्रोडक्शन, स्टेप्स इन्वॉल्व, क्योंकि आपको यहाँ पे हीट को कोल्डर रीजन से हॉटर रीजन में ले जाना है. देन दिस वाज वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ इट वर्क्स, बिकॉज यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट विथ सिंपल थिंग्स. ओके, तो मैं वापस बता रहा हूं, याद रखना ये चीजें, एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको. इनसाइड द चेंबर विच यू आर सपोज टू मेक कोल्डर, क्या होगा? एक्सपांशन एंड फोर्स वेपराइजेशन. मतलब रेफ्रिजरेंट लिक्विड था, वो अभी गैस में, फिर वो बाहर जाएगा. कहां जाएगा? एनवायरमेंट में क्या होगा? कंप्रेशन एंड फोर्स कंडेंसेशन, राइट? अब डिटेल्ड एनालिसिस इज गिवन बाय दिस, एग्जैक्टली क्या होता है. करेक्ट? आर वी गुड हियर? समझा यहां तक? नाउ लेट अस लुक एट एनर्जी फ्लो डायग्राम. तो मैंने आपको बताया था ये. लेट अस कंपेयर हीट इंजन like Carnot engine and of course refrigerators. So in this case you have a source and a sink. ये आपका था heat engine और Carnot engine, जो भी बोलो, Carnot engine also heat engine. So this was source. If you remember, source was at pH, higher temperature, source. And this is sink. Sink was at lower temperature, TC. Right? क्या किया था यहाँ पे? यहाँ पे हमने सोर्स से हीट एब्जॉर्ब किया, उस हीट का कुछ पार्ट हमने वर्क में कन्वर्ट किया, तो QH amount of heat was absorbed, part of it was converted to
work, and other part which could not be converted was rejected to the sink or to the surrounding environment. तो इसलिए आप लिखते हो total heat absorbed is QC plus W, मतलब W is equal to QH minus QC. Then you define a parameter which is called as efficiency, thermal efficiency, eta. It is the ratio of work output upon heat input. Work output upon heat input कितना था? QH. Okay, this is equal to QH minus QC by QH. तो 1 minus QC by QH. इसी को आप in terms of temperature लिख सकते हो, which I am not writing for the time being. Correct? Now let us compare. Comparison will give you better explanation, better understanding of this. यहाँ पे this is and this is what do you want to do? This is what? ये colder region है TC टेम्परेचर पे, ये hotter region है TH टेम्परेचर पे. क्या करना है यहाँ पे आपको? You want to do what? You want to take out heat. कहां से? कोल्ड से, रेफ्रिजरेटर के अंदर का चेंबर. ओके, और देना कहां पे है? देना कहां पे है इसको? कहां पे देना है? एनवायरमेंट इज ऑलरेडी हॉटर. तो यू विल एब्जॉर्ब, यू वांट टू, नॉट यू विल, यू वांट टू एब्जॉर्ब QC अमाउंट ऑफ हीट. लुक एट एरोस. यहाँ पे सोर्स से हीट एब्जॉर्ब हो रहा था, तो एरो का डायरेक्शन पे ध्यान देना. राइट, यहाँ पे कोल्डर रीजन से हीट एब्जॉर्ब करके हॉटर रीजन में भेजना है. करेक्ट? अपने आप होगा नहीं. इट वायलेट्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो नहीं हो सकता अपने आप. तो इसको हेल्प करने के लिए मैकेनिकल वर्क एज इनपुट देना पड़ेगा. वहां पे मैकेनिकल वर्क क्या था? आउटपुट. यहाँ पे मैकेनिकल वर्क क्या है? इनपुट. राइट, यहाँ पे इनपुट क्या था? heat. Here output will be heat. Heat to work. Heat input, work output. Work to heat. Work input, heat output. Work input, heat output. Okay, and so look at the arrows again. वापस से work plus QC equal to QH. Okay, गुड. तो इक्वेशंस आर द सेम. इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं है, दे आर द सेम, राइट. बट यहाँ पे आप थर्मल इफिशिएंसी डिफाइन करते हो. यहाँ पे आप एक नया पैरामीटर डिफाइन करते हो विच इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या तो डिनोटेड बाय COP, or it is also called as quality factor. Quality factor, which is called as Q factor also. Okay, this is quality factor also is called as Q factor. नहीं तो बोलोगे ये Q भी amount of heat. It is not heat. This is just a factor, Q factor. Okay, so here you define something called as Q factor. How to define this now? Q factor, quality factor denoted by COP or Q or K, सब एक ही है. Coefficient of performance, all this is same. Okay, so do you have any idea? Have you heard of this factor? नहीं. यहाँ पे क्या था? Work output upon heat input. Good. Here, if I write down output, what is output? Heat. Output is heat. Input is work. Correct? Good. यहाँ तक correct? Correct है ना? Output is heat. Input is work. But what is work? What is work? You see? So this is
QH upon QH minus, that is what is work? What is work? QH minus QC. So what did I write here? QH minus QC. So this is nothing but quality factor or coefficient of performance of refrigerator, right? Okay. By the way, how to remember, how to cross check? Efficiency की वैल्यू हमेशा लेस देन, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन. अब मुझे बताओ, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ओवरऑल नंबर क्या होता है? बड़ा. व्हाट इज 2 by 1? 2. व्हाट इज 3 by 1? व्हाट इज 2 by 3? 2 by 3 is less than 0.66 मतलब. ओके, राइट. तो जब न्यूमरेटर में नंबर छोटा हो और डिनोमिनेटर में बड़ा हो तो ओवरऑल नंबर इज लेस देन 1. जब उल्टा होगा, न्यूमरेटर में नंबर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो ग्रेटर देन. व्हाट डिड आई टेल यू? क्वालिटी फैक्टर और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. सो QH अपॉन QH माइनस QC, राइट? आउटपुट अपॉन इनपुट. व्हाट इज आउटपुट? हीट. कितना? QH. व्हाट इज इनपुट? वर्क. Heat output upon work input, that is nothing but coefficient of performance or quality factor of a refrigerator. आप जो घर में रेफ्रिजरेटर यूज करते हो, like whatever company brand whatever you buy, normally that value is 5. तो हमारे घर का जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू नॉर्मली 5 होता है, राइट? गुड. सो पॉइंट्स टू बी नोटेड हियर. यू नीड टू कंपेयर दीज टू. भूलोगे नहीं, गड़बड़ होगी नहीं. नंबर 1, एक दो चीजें याद रखनी है आपको, अगर वो आ गया तो खत्म. इनपुट हीट, आउटपुट वर्क. इनपुट वर्क, आउटपुट हीट. वेरी गुड, दैट्स इट. और एरोहेड पे ध्यान दोगे तो ये QH इक्वल टू W प्लस QC है, ये भी QH इक्वल टू W प्लस QC है. मतलब यहाँ पे नो चेंज. सिर्फ यहाँ पे इफिशिएंसी डिफाइन करते वक्त आउटपुट अपॉन इनपुट. आउटपुट क्या था? वर्क. इनपुट क्या था? हीट. तो W बाई QH. यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करते वक्त या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन करते वक्त आउटपुट अपॉन इनपुट. आउटपुट क्या है? हीट. और इनपुट क्या है? वर्क. बट वर्क क्या है? QH माइनस QC. न्यूमरेटर बड़ा आया, राइट? तो क्वालिटी फैक्टर 1 से बड़ा आया, राइट? तो योर इक्वेशन इज राइट. ओके. यहां पे इफिशियंसी में न्यूमरेटर छोटा आया, मतलब नंबर ओवरऑल 1 से छोटा है, राइट? तो योर इक्वेशन इज ऑल्सो राइट. क्लियर यहां तक? इज इट क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड हाउ एयर कंडीशंस, how your refrigerators work? So next time when you turn on air condition, you need to start thinking about all this कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, because this is the best way of remembering and learning physics. You have to always apply what you learn. तो ये सारा का सारा mechanism you have to go once again through all this after this session. Are we good? This is end of theory part of this chapter. So we'll stop here.